Hello बच्चों, welcome to the second class of your second chapter for the history subject, that is on the trail of the earliest people. Okay, तो हमने लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी हिस्ट्री की पीरियडाइजेशन पे. वी टॉक्ड अबाउट द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू थ्री मेजर पीरियड्स. द फर्स्ट वन वाज द एंशिएंट इंडिया, द सेकंड वन वाज the medieval India, and the third one was the modern India. Also then we talked about that in ancient India basically there have been three ages. So the first one was the Paleolithic age, the second one was the Mesolithic age, and third one was the Neolithic age. We will which we are going to read in the subsequent chapters. Okay, so now I'm going to start the chapter that was for your basic understanding, right? So we are starting with the earliest people. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था दैट हु वर दोज अर्लीस्ट पीपल, व्हाट वी कॉल्ड देम, हाउ देयर लाइफ स्टाइल वाज. लेकिन यहाँ हम थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन में, हम थोड़ा ब्रॉड डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे उन सारी चीज़ों को लेकर जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में वी अंडरस्टूड इट थ्रू फ्यू एग्जाम्पल्स, राइट? सो अराउंड 2 million years ago the earliest people who lived in the subcontinent were called were called hunter gatherers. Okay, तो 2 million years ago जो यानी कि हम पैलियोलिथिक एज, जब हम पैलियोलिथिक एज का डिस्क्रिप्शन किया था, मैंने पिछली क्लास में मैंने क्या बोला था, उनका टाइमलाइन था 2 million years ago से लेके ये 12,000 years ago तक. ठीक है, तो ये जो अराउंड 2 million years ago जो भी लोग जो अर्लीस्ट पीपल हु वर देयर ऑन आवर प्लैनेट, या फिर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया इन आवर सब कॉन्टिनेंट, so they were called the hunter gatherer groups. So basically why were they called hunter gatherer groups? So the name itself suggests that they hunted wild animals, they caught fish, birds, gathered fruits, leaves, seeds, roots and everything. तो hunting gathering का मतलब क्या होता है? मतलब hunting के लिए वो wild animals को hunt करते थे, जो भी उन्हें wild animal मिलते थे. तो survival के लिए obviously they had to eat something, so they used to eat leaves or roots or the seeds, whatever plants they found were edible. ये वो लोग प्लांट्स को चूज करते थे. उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी होती थी. इमेजिन करो, मतलब उनके पास सिर्फ एक लिमिटेड चॉइस ही है, वो लीव्स ही खा सकते हैं. उसमें भी उन्हें चूज करना था कि कौन सा एडिबल लीव्स हो सकता है, कौन सा इनएडिबल है, मतलब हम नहीं खा सकते हैं, जो कि पॉइजनस होते हैं. बहुत सारे लीव्स पॉइजनस भी होते हैं, तो दैट वुड बी डेंजरस, राइट? तो वो लोग पहले दे यूज टू फाइंड आउट कि कौन से एडिबल प्लांट्स हैं, तो वो उन सब चीज़ों को गैदर करते थे, फ्रूट्स गैदर करते थे, नेचुरल चीज़ें जो भी थी वो यूज़ करते थे, राइट? और वाइल्ड एनिमल्स, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, तो उन सारे वाइल्ड एनिमल्स को वो हंट करते थे, डियर को हंट करते थे, एलिफेंट, ये सारे. तो हम ये सारी चीज़ें बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे. ओके, सो ऑल्सो दे वर ऑलवेज ऑन मूव. वन अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर इज दैट दे वर ऑलवेज ऑन मूव. Now, why were they always on move? This is one important question that we are going to cover in this class. So, let us see that. So, जो भी people who were on move, they were basically known as the nomads. Nomads कौन होते हैं? जो कि एक certain एक group में travel करते हैं. They used to travel in group, and also they move from one place to another. They are not settling down at one place. एक जगह पे वो कुछ टाइम के लिए रहते थे, और उसके बाद वहाँ से फिर वो थोड़े टाइम के बाद वो मूव ऑन कर जाते थे दूसरे प्लेस पे फॉर in search of new place. So let us study that why these earliest people who were there in our subcontinent, why were they on move? So basically there are 4 reasons that we are going to discuss about people and the reasons for their move. So let us discuss the first point here. While staying in one place, they would have eaten all the plants available there. So they had to move in search of food. Now the first reason was in search of food. Let us imagine कि एक group of hunter gatherers है, right? तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर माउंटेन के पास एक एनवायरनमेंट में अपना रुके हुए हैं, और जितनी देर वो वहाँ पर हैं उतनी देर वो वहाँ के प्लांट्स खा रहे हैं, वहाँ के फ्रूट्स खा रहे हैं, जो भी उनको ईजिली अवेलेबल हो जा रहा है, जो भी उनको चीज़ें ईजिली मिल जा रही है, वो उन सारी चीज़ों को खा रहे हैं. बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा कि वहाँ से वो जितने भी प्लांट्स हैं जो भी वो ख़त्म हो जाएगा, राइट? अब वो खा जाएंगे तो ऑब्वियसली वो वापस से, उनको उस टाइम तक फार्मिंग करनी नहीं आती थी. पॉइंट नोट करो यहाँ पर कि उनको फार्मिंग आती नहीं थी, उनको एग्रीकल्चर करना आता नहीं था, उनको प्लांट्स को ग्रो करना बेसिकली आता नहीं था. तो जितने भी उनको मिल जाते थे आर्टिफिशियल प्लांट्स, जितने भी उनको मिल जाते थे नेचुरली, वो सारी चीज़ें वो खा जाते थे. अब एक पॉइंट के बाद जब खत्म होएगा तो उनको मूव ऑन करना पड़ता था. बेसिकली इन सर्च ऑफ फूड दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट हियर इज दे हैड टू हंट एनिमल्स हु वर ऑलवेज ऑन मूव, and thus hunters had to follow their movement, right?
तो सिंस दे वर हंटर गैदरर्स, अब गैदरिंग के लिए तो इन सर्च ऑफ फूड एक रीजन हो गया. द सेकेंड रीजन इज दैट जो भी वाइल्ड एनिमल्स को वो हंट करते थे, वो वाइल्ड एनिमल्स हमेशा दे वर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसा नहीं था कि वाइल्ड एनिमल्स जो भी वहाँ पे थे वो एक जगह पे स्टिक रहते थे, वो भी एक जगह पे बैठे रहते थे, नहीं, दे वर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे वर गोइंग वन प्लेस टू अनदर. तो ये हंटर जो होते थे, जब भी ये वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग के लिए जाते थे, सिंस फूड वॉज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ एट दैट, फॉर एवरीवन इट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, राइट. तो दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करने के लिए. तो उनकी मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए, उनकी मूवमेंट को फॉलो करने के लिए दे हैड ऑल्सो टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. फर्स्ट वन इज द सर्च ऑफ फूड, सेकेंड वन टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. Now let us see the third point. So due to seasonal changes, they had to move in search of different kinds of plants. तो कुछ प्लांट्स होते थे वो एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करते हैं. आज के डेट में भी एक जैसे मैंगो, समर्स में मैंगोज बहुत आते हैं, राइट. लीची उसके बाद आता है. विंटर्स में ये सारी चीजें नहीं मिलती है, विंटर्स में ग्रेप्स ये सब मिलता है. तो फ्रूट्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी कुछ सीजनल होते हैं. अकॉर्डिंग टू सीजन वो ग्रो करते हैं. तो जब भी सीजन चेंज होता था, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक पर्टिकुलर सीजन पे एक जगह पे रह रहे हैं. अब वो सीजन खत्म हो गया, वो प्लांट का ग्रोथ खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली इस वजह से भी उनको मूव करना पड़ता होगा, राइट. तो थर्ड पॉइंट हियर, थर्ड मेजर पॉइंट फॉर देयर मूवमेंट इज ड्यू टू सीजनल चेंजेस. इन सर्च ऑफ न्यू प्लांट्स, अगेन इन सर्च ऑफ फूड, दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके. नाउ फोर्थ पॉइंट हियर इज इन सर्च ऑफ वाटर, पीपल हैड टू मूव टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग विंटर और एंड ड्राई सीजन्स, राइट. नाउ अंडरस्टैंड दिस. तो बेसिकली ये लोग, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया था, ये लोग जब भी मूव करते थे, ये लोग कहाँ, कौन से मेजर रीजन में रहते थे, या तो माउंटेन्स जहाँ पे इनको प्लांट्स, ट्रीज ये सब बहुत मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वुड इन्हें चाहिए था, लीव्स इनको चाहिए था. उसके अलावा ये रिवर्स के पास रहते थे. वाई? बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. वाटर इनको लार्ज क्वांटिटी में मिल जाता था. तो जब भी ये किसी रिवर के पास रह रहे हैं, तो विंटर के टाइम पे कहो, या लेट्स से जब समर का सीजन आता है तो ऑब्वियसली पानी सूख जाती है ड्यू टू द हीट, ठीक है. तो जैसे ही सीजन चेंज होता है तो ये सीजनल चेंज की वजह से वाटर की एबिलिटी भी खत्म होने लगती है, तो दे हैव टू मूव टू सम अदर प्लेसेस. तो दीज आर द बेसिक reasons for why they were moving always on move from one place to another, right. I hope you have understood this. Also they moved on foot and they covered large distances. Another important point, they had to cover rough distances, rough passages everywhere. तो आप इमेजिन करो माउंटेन्स के थ्रू इनको बहुत रफ कंडीशन में इनको ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि इनके पास और कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी चीज़ होगी. इनके पास उस टाइम तक ये लोग ना डोमेस्टिकेशन जानते थे, ना इनको हॉर्सेज या एलिफेंट्स के बारे में नहीं पता था, कि जिनको बाद में आफ्टर डोमेस्टिकेशन दे वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग, बहुत टाइम बाद. तो यहाँ पे इनको कुछ पता नहीं था. इनके लिए देयर बॉडी वाज सफिशिएंट फॉर देम एंड दे हैड टू मूव ऑन फुट. तो ऑब्वियसली दे यूज्ड टू कवर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस. यहाँ से वहाँ काफ़ी, वो आप इमेजिन खुद ही करो, आप मैक्सिमम घर से शॉप तक ही जाने में आपको ये प्रॉब्लम हो जाता होगा, राइट. बहुत लोग इतनी दूर डिस्टेंस दे कांट कवर large distances. So imagine their condition as at those times where they had certain criteria or certain choices only, and they had to live in those choices. Okay. Now here you can see. So this is a picture showing you. In this picture you see how fierce they have to be and very alert at the time of catching or hunting animals. तो ये लोग, अगर कभी कभी होता था कुछ इतने फास्ट होते थे कि उनको दौड़ना पड़ता था इनको पकड़ने के लिए, राइट. तो इनको काफ़ी फेयर्स होना पड़ता था जब ये हंटिंग करते थे. बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही चुपके से ये लोग हंटिंग करते थे. सेकेंड पिक्चर हियर यू कैन सी, ये रिवर के पास इनका सेटलमेंट, माउंटेन एंड रिवर के पास हंटर गैदरर्स अपना घर बना रहे हैं, हट बना रहे हैं, राइट. एंड थर्ड वन हियर यू कैन सी द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द होल पीरियड इज पॉइंटेड आउट हियर. हंटिंग के लिए ये एलिफेंट का है, ठीक है, एलिफेंट को हंट किया गया है. आर्ट देखो, पेंटिंग की जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी, केव पेंटिंग और ये सब, तो यहाँ पे पेंटिंग करते हुए टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं हंटर्स, अर्ली पीपल दे लर्न टूल्स सच एज learn to make tools such as spear for hunting, right? ये spear की photo है. We'll discuss all these in detail in our subsequent slides. Fire, discovery of fire भी मैंने आपको बताया. Also gathering, they used to gather. So ये picture में काफ़ी easily देखो ये सारे major जो features हैं इस period के, इसमें अच्छे से describe किया हुआ है. Okay?
Now let us study about the stone tools. Now we have studied about the earliest people and how what were they called? They were called hunter gatherers. Now let us move to the stone tools that were used, major features of those times, right? तो सबसे बेसिक चीज जो उनके यूज के लिए था, that was the stone tools. Now let's have a detailed study on these stone tools. How were these stone tools made and what kind of stone tools were there, where were they found? Okay, we'll study that. So archaeologist, now we studied this term in our last chapter. तो archaeologist कौन थे? People who used to study the objects that were found through excavation, buried inside the earth, right? So they found variety of stone tools made up of stone, wood and bones. ये आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया था. स्टोन टूल्स बेसिकली ये लोग स्टोन से बनाते थे, नहीं तो वुड से बनाते थे, नहीं तो बोन से बनाते थे, राइट? ऑल्सो सम टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन एंड टेक आउट बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइट्स. हाइट्स क्या होता है? एनिमल्स की स्किन. तो देखो, जो कुछ शार्प टूल्स होते थे, कुछ टूल्स थे जो कि जब एनिमल्स को हंट करते थे, ठीक है, तो उनके मीट को निकालने के लिए, उनकी बोन को निकालने के लिए कुछ टूल्स इसके लिए यूज होते थे. कुछ होते थे जो ट्री का जो बार्क होता है, ठीक है, उसको कट करने के लिए, क्योंकि इनको घर जब बनाना होता था या फिर कोई शार्प टूल बनानी होती थी तो वो बार्क को यूज करते थे. एंड ऑल्सो हाइट्स. अब एनिमल स्किन ये सब यूज होता था. वाई? टू कवर देयर बॉडी. तो ये लोग या तो लीव्स यूज करते थे, नहीं तो एनिमल के स्किन को यूज करते थे, ठीक है, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. तो इन सब चीजों के लिए कुछ टूल्स यूज करते थे. यू सी कितने वो जुगाड़ू टाइप्स होते थे उस टाइम पे द हंटर गैदरर्स, सिंस उनके पास इतने कम चॉइसेस हैं और उन चॉइसेस में उनको अपने वो ऑप्शंस ढूंढते रहते थे. ओके, now some other tools, let us study about that. So some tools were used to make spears and arrows for hunting. They are attached to the handles of bone or wood. तो एक जो आपको मैंने पिछले फोटो में दिखाया स्पीयर का, तो एक होता था बिल्कुल लॉन्ग जैसा वुड होता था और उस पे एक शार्पेंड स्टोन यूज किया जाता था. वो स्पीयर होता था, वो एरो की तरह होता है, राइट? उसको हंटिंग के लिए यूज होते थे. तो वो बोन या वुड के हैंडल से अटैच होता था, काफी शार्प होता था. वो जब जैसे ही वो हंटिंग के लिए जाते थे, दैट वाज वेरी इजी फॉर देम टू किल वाइल्ड एनिमल्स. ओके, सो अदर टूल्स दैट वर यूज्ड टू चॉप वुड, दैट वाज यूज्ड इन फायरवुड. तो जब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर, नाउ दे अंडरस्टूड, एक तो स्टोन से पहले डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ, राइट? तब धीरे धीरे जैसे ही अडेप्ट करने लगे अपने इन्वायरमेंट में, इन लोगों ने देखा कि फायर को ये कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो जब कुकिंग के लिए यूज कर रहे थे, देन दे अंडरस्टूड कि वुड जो है, ये वुड से इसको जलाएंगे तो वो फायर काफी फ्लेम, काफी अमाउंट में आएगा और इसके लिए फर्दर ये एज अ सोर्स ऑफ लाइट या फॉर कुकिंग या स्केयरिंग वाइल्ड एनिमल्स, तो इन सब चीजों के लिए वो फायर यूज होगा. ठीक है, तो बेसिकली for three purposes the fire was used: for cooking, for as a source of light, and also as scaring animals, you know, to scare wild animals at night. ये fire use करते थे. ठीक है, also wood was used in making huts and tools. वुड का यूसेज हमने पिछले चैप्टर में भी एक पिक्चर में जब ह्यूमन शेल्टर का देखा था, तो उसमें भी हमने देखा कि लंबे लंबे वुड से वो घर बनाया करते थे, लीव्स यूज करते थे, स्टोन्स यूज करते थे, और टूल्स बनाने में स्पीयर में जैसे या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ शार्प टूल्स जब बनाना होता था तो वुड का यूसेज होता था. तो इस तरीके से आप देख रहे हो कैसे ये स्टोन टूल्स कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. तो हम जब पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे थे, सो वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द ओल्ड स्टोन एज. तो ये वही पीरियड चल रहा है जब अर्लीस्ट पीपल दे आर यूजिंग स्टोन्स, और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है. ठीक है, कितना यूसेजेस इनका हो रहा है, यू कैन सी दैट. ऑल्सो द टूल्स वर यूज्ड for digging the ground to collect edible roots. Also they were used for stitching clothes made out of animal skin. Again, जो ग्राउंड को डिग करने के लिए वो रूट्स, जैसे इन लोग को ये रूट्स भी कलेक्ट करते थे सिंस दे वर गैदरर्स, राइट, वो खाने के लिए. तो कभी कभी ये हाथ से नहीं यूज करते थे, तो टूल्स दे वर यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे से जब वो रूट्स इनको निकालना होता था. ऑल्सो जब एनिमल स्किल, जो हाइड मैंने आपको बताया, तो एनिमल स्किल को, एनिमल स्किन को जैसे वो ये स्क्रैप करते थे और वो क्लोथ अपना बनाना चाहते थे, तो टूल्स इन सब चीज़ों के लिए भी यूज होता था. नाउ हियर इज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स. जस्ट हैव अ लुक. दिस इज अ स्पीयर दैट दे वर यूज्ड फॉर हंटिंग, एंड डिफरेंट शार्प टूल्स, यू कैन सी वुडन टूल्स, एंड दिस टूल इज मेड ऑफ एंटलर, जो कि एक एनिमल था, उसके जो सिंग हुआ करते थे उसको एंटलर कहते थे, उससे बनता था, right? These are the various kind of tools that were used. Now in next chapter we are going to continue this topic about tools, stone tools, and also we'll look at various sites. So till then, thank you very much and just take care.